Now there is another method to find out the transfer function. So that method is known as signal flow graph. So with the help of this signal flow graph, we can also find out the transfer function of the system, and that is comparatively easy as compared to the block reduction diagram. So, okay, यहाँ से share ही कर लेते हैं. So signal flow graph is an alternative to block reduction. Block diagrams necessitate iterative reduction to compute the overall transfer function. So that we had already studied, that we have to perform an iterative operation. First, we have to solve out the first we have to find out if there is any series, two blocks are in series or not, two blocks are in parallel or not. Then we are going to move the takeoff point in the forward and backward direction, and then we are going to solve that there is a closed loop path or not. And finally, we are going to find out the transfer function of the overall system. So the other method, which is known as signal flow graph, is also possible to compute the overall transfer function by using a Mason gain formula. So we can use a Mason gain formula to find out the overall transfer function of the system. So with practice, Mason can also apply to block reduction directly. So there are certain things that we have to understand before applying the Mason gain formula. What is an input or source node? So source node has only one outgoing branch. You have to understand that it has only one outgoing branch. While output node, so this one is a source node or input node, while output node is known as sink node. Sink node has only incoming branch. Source node has only outgoing branches. So as you can see here that there is only an outgoing branch, while sink node has only an incoming branch. So here only the things are coming towards the sink or towards the output. Now path, a continuous succession of branches transferred in the same direction. So if you have two nodes, then there is a path which is going from one node to another node. Now, if it is in the forward direction, we are going to consider it as a forward. Forward means from the input or source node towards the output or sink node. This thing you have to understand. Closed path, not visiting any node more than once. Closed path does not visit any node more than once. ये वाला point याद रखेंगे, आगे future में हम use करने वाले हैं. Path gain is a product of gains in the gains on the path. So path gain में gain क्या है? Is a product of the gains of the path. For example, here gain is G1, here gain is G2. So it is a product of these two gains. Now forward path gain means product of gains on forward path. Loop gain क्या होता है? Product of gains of the loop. Now another thing is that loops that non-touching loops are loops that have no node in common. If there is a no node that is common, then we called it non-touching loops. एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं समझाता हूं क्या होगा. So for example, if you are going, there is a forward path. Forward path means we are going from this place to this place, x0 to x1, then x1 to x2, then x1 to x3, and x3 to x4.
also there is a forward path in this direction. So if I am going to ask you how many forward path, so forward path means path from input to output. So there is a one path x0, x1, x2, x3, x4. There is another path x0, x1 and x4. Now फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये दे दिया, अभी कितने फॉरवर्ड पाथ हो गए? सर फॉरवर्ड पाथ तो सर उतने ही रहेंगे सर 2 हो गए। गुड। सो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात थी, वो क्या है? नो नोड इज ट्रेस्ड ट्वाइस। नो नोड इज ट्रेस्ड ट्वाइस, ये याद रखेंगे। दैट्स वाई मैं इस वाले पाथ को नहीं लिख रहा हूं। अगर मैं ये पाथ लेना चाहूं x0, x1, फिर x1 से हम गए x1 पे, फिर से वापस आ गए x1 and then we are going towards x4 because this node is traced twice, so that is not a forward path. So no node is traced twice. ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सर तो फिर 0 फॉरवर्ड पाथ, 2 फॉरवर्ड पाथ में ना? हाँ 0 2। तो पहला का फॉरवर्ड पाथ वो ये था, ठीक है। तो x1 to x4 मैं तो सिर्फ 2 इसमें कोड फॉरवर्ड। ऐड किया कि दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फॉरवर्ड पाथ। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा मान लो अगर मैंने ये कर दिया होता तो कोई कहेगा कि मैं ये पाथ लेना चाहता हूं, यहां से जाऊं, आगे जाता जाऊं, फिर यहां से आऊं और ये पाथ ले लूं। बट एज यू कैन सी अगेन दिस नोड इज ट्रेस्ड ट्वाइस, सो दिस कैन नॉट बी अ फॉरवर्ड पाथ। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। गुड। नाउ नेक्स्ट कम्स feedback loop. So feedback loop किसे कहते हैं? A loop which originates and terminates at the same place or at the same node. So it means अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूं, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं जिसमें सभी कुछ एक्सप्लेन करूंगा। x1, then x2, then x3, then x4, then x5. T1 इसका गेन है T1 और T1 to 3 कनेक्ट हो रहा है, एंड x4 से हम इधर कनेक्ट करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज T42 and this one is T35 and then there is a self loop is T33. So a loop which originates and terminates at the same point. So if we are going to start it from x2 then x3, ये फॉरवर्ड, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन। So x2, x3, x4 ये वाला ले रहा हूं मैं, and again x2। यस सर। सो ये लूप बनता है, ठीक है ना? ये बन गया। यस सर। अभी एक पॉइंट और डिस्कस कर लूंगा, देन आपको क्लियर आइडिया होगा। नाउ देयर इज अ सेल्फ लूप, अ फीडबैक लूप
consisting only one node is called self loop. If it consists only one node, then it is called as self loop. तो self loop यहाँ क्या हो रहा है? ये हो रहा है, यही हो So रहा what है is ना? the point? What is the point of a self loop, sir? Point is x3. अभी मैं बताता हूँ क्या होगा, एक मिनट. नहीं, application क्या है self loop? हाँ वो देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे हम सेल्फ लूप का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना. बट राइट नाउ तो आपको ये समझना है कि सेल्फ लूप क्या होता है. अभी हम नहीं देख रहे हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज द एप्लीकेशन इफ वी हैव इन द डिनोमिनेटर वी हैव एन पावर ऑफ 2, और इफ वी डू नॉट हैव अ कांस्टेंट in the denominator, or if we have a constant in the numerator, what will happen? We are not going to analyze it, all those things right now. Our only the only purpose of teaching this block reduction diagram or Mason gain formula is to find out the transfer function of the system, and later on we are going to study the transfer function of the system. Then we are going to understand what is the application of the all those things. ये point clear है? Yes, So sir. this x3 यहां पे एक पॉइंट नोट रखना है, ध्यान रखना है क्या, a self loop cannot appear while defining forward path or feedback loop. जब कभी हम फॉरवर्ड पाथ डिफाइन करेंगे और फीडबैक लूप लेंगे, उसमें हम सेल्फ लूप को कंसीडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज x3 is tracing twice and which is not allowed. ये पॉइंट समझ में आ गया? और सर एक बार रिपीट करना प्लीज, ये नोट में जो आपने लिखा है वो. मैंने यहाँ क्या लिखा है, a self loop cannot appear while defining forward path or feedback loop as node containing it gets traced Twice. twice, Yes. which is not allowed. ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Good. Now the last definition is non-touching loops. So if there is no node common in between two or more loops are said to be a non-touching loops. Non-touching loops का जैसे कि एग्जांपल देखते हैं. x1, this one is x2, this one is x3, x4, x5 and x6. So all these three loops are non-touching loops since none of the node, इसमें क्या लिया, between no node common between the two or more loops. यहाँ पे लूप क्या बन रहा है, अगर मैं इसको ले लेता हूं t21, इसको ले लेता हूं t43 और इसको ले लेता हूं t4, ये क्या है x4 x5 t65. तो पहला लूप है वो मेरा क्या बन रहा है, x1 x2 अगेन x1 पे, ये लूप बन रहा है. दूसरा लूप मेरा क्या बन रहा है, x3 x4 एंड x3.
तीसरा लूप बन रहा है x5, x6 एंड x5। अब इन तीनों लूप्स में कोई भी नोड कॉमन नहीं। ऑफ कोर्स एक लूप बनने के लिए तो एक नोड पे ही आप स्टार्ट करेंगे, उसी नोड पे एंड करेंगे, बट अगर आप देखोगे x1, x2, x3 में से इसमें कहीं कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी। x1, x2, x1 से में, x3, x4, x3 में और x5, x6, x5 में कोई भी नोड कॉमन नहीं आ रहा। सो दीज थ्री लूप्स आर नॉन टचिंग लूप्स। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। हाँ, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखते हैं एग्जांपल, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। x1, x2, x3, x4। अब मुझे बताइए कि इसमें जो है नॉन टचिंग लूप्स कितने हैं? और सर दो लूप्स है नॉन टचिंग। So दो लूप। एक लूप तो है So x2, तीन लूप्स। सॉरी दो लूप्स। हाँ। देखते हैं x2, x3, x2। एक लूप यस तो ये है, सर x1, x4, x1 वापस। एक ये भी है x1, x2, x3, x4 एंड x1। एक लूप ये भी है x1, हाँ यस सर। x1। ठीक है। यस सर। नाउ ये वाला लूप और ये वाला लूप तो नॉन टचिंग लूप है, दिखाई देगा है, बिकॉज नो नोड इज कॉमन। यस सर। बट ये वाला अगर तुम देखोगे, यहां x1 आया है, so these are touching loops। ये वाला x2 यहां दिखाई देगा है। तुम खुद देखो ना कि इस लूप को ये टच कर रहा है कि नहीं, ये छोटा वाला लूप, यस सर। है ना? यस सर। यस। तो फिर सिर्फ ये वाला और ये वाला लूप क्या है? नॉन टचिंग लूप्स है। सर टू नॉन टचिंग लूप्स हैं सर। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अगर मैं इस वाले लूप को लेता हूं, ये बड़ा वाला लूप और ये छोटा वाला लूप, तो दोनों नॉन टचिंग लूप्स हैं। मेरे पास एक लूप ये आएगा और एक लूप ये आएगा, दोनों नॉन टचिंग लूप्स हैं। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। Good. Now, how we are going to use these concepts in forming the identifying the information of overall transfer function, or to find out the overall transfer function. For example, we have a block diagram. G1, G2, this one is G3. Then there is a summing point, then G4, this one is H2, this one is H1. So first point क्या करना है? Name all the summing points and takeoff point in the block diagram. So हम क्या करते हैं? Name all the summing point and takeoff point in the block diagram. तो मैंने क्या किया? इसका नाम रख दिया S1। यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट है तो मैंने उसका नाम रख दिया T1। यहाँ पे समिंग पॉइंट है, इसका नाम मैंने रख दिया S2। एंड इसका नाम रख दिया T2, इसका नंबर रख दिया T3। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। पहला पॉइंट क्या करना है? नेम ऑल दी summing points and takeoff points in the block diagram.
नाउ सेकेंड पॉइंट इसमें जो आपको यूज करना है, रिप्रेजेंट each summing point, each summing and takeoff points by SEPRAT, separate node in the signal flow graph. सिग्नल फ्लो ग्राफ को SFG लिखता हूं मैं। अब देखिएगा इसको मैं कैसे, यहां से क्या कर रहा हूं, यहां समिंग पॉइंट कर दिया, इसको एक नोड लिख दिया, तो अब मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? पहले मैंने क्या किया, समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को मेंशन कर दिया, एंड क्या किया उसके बाद, रिप्रेजेंट ईच समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट्स बाय ए सेपरेट नोड। क्लियर है? यस गुड। नाउ थर्ड पॉइंट जो आपको करना है, connect them by the branches instead of block transfer function as the gain of corresponding branches। मतलब जो ब्लॉक डायग्राम आपके पास था उसको रिप्लेस कर दीजिए उसके गेन से। सो अगर देखिए मैं रिप्लेस करता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये मेरा G1 था, इसको मैंने इसके गेन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं आपके लिए एक डिफरेंट कलर यूज करूंगा, तो यहां पे गेन क्या लिखा था, G1 लिख दिया। सिमिलरली यहां पे G2 लिख देता हूं मैं, जो जो ब्लॉक थे आपके उनको रिप्लेस कर दिया मैंने से उनके गेन से, ये G2 से रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसको रिप्लेस करके आपको बताता हूं। इस T1 से मेरे पास एक G3 जा रहा था S2 तक, इसको मैंने लिख दिया G3। यहां से मेरे पास एक ब्लॉक जा रहा था इधर की तरफ, ऑफ कोर्स यहां माइनस साइन था तो मैंने यहां लिख दिया -X1। यहां से एक जा रहा था यहां की तरफ, तो मैंने इसको हटा दिया, यहां लिख दिया -H2। और यहां से यहां के बीच में जा रहा था G4। ये पॉइंट क्लियर है? ब्लॉक को मैंने उसके गेन से रिप्लेस कर दिया। इफ इट इज पॉजिटिव देन पॉजिटिव लिख दिया, इफ इट इज नेगेटिव देन नेगेटिव गेन लिख दिया। राइट सर। यस। तो पहला पॉइंट आपको क्या करना है, समिंग एंड टेक ऑफ पॉइंट को मेंशन करना है, एंड देन ईच नोड इज गोइंग टू बी रिप्लेसेड बाय S and P, summing point and take off point. After that you have to replace that block with the gain, corresponding gain. Clear है? यस सर। This is nothing but a signal flow graph. अब एक बार आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ बन जाएगा, then you can apply a Mason gain formula. कैसे अप्लाई करना है? So Mason gain formula के corresponding transfer function is equal to summation of Tk डेल्टा के अपॉन डेल्टा। अब सबकी मीनिंग देखते हैं। K इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। मान लो किसी एक एग्जांपल में मैंने देखा, जैसे कि पीछे वाले में देखते हैं, यहां कितने फॉरवर्ड पाथ हैं,
एक पाथ तो मेरा ये बनता है, सीधे चले जाऊं मैं, एक पाथ मेरा बनता है यहां से जाओ, यहां चला जाऊं और फिर यहां चला जाऊं, ठीक है। दो पाथ बना है तो दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। ये पॉइंट क्लियर है? और कुछ तो दिख नहीं रहा फॉरवर्ड पाथ में। अगर मैं ये वाला पाथ ले लेता हूं फॉरवर्ड पाथ में, फॉर एग्जांपल यहां से गया और यहां ऊपर चला गया, नीचे आया और यहां गया, फिर वापस आया, वापस जाऊंगा, तो नोट क्या होगा, ट्वाइस चेंज हो जाएगा। So that is not going to be a forward path. So K becomes 2 in our previous case. Now what is TK? अगर K की वैल्यू आपको पता चल गई तो दो फॉरवर्ड पाथ है, दोनों को लिख डालिए आप। TK is nothing but gain of the kth फॉरवर्ड पाथ। जैसे पीछे वाले केस में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, एक गेन हो जाएगा G1 G2 G4 और T2 T3 के बीच में 1 है, सो G1 इंटू G2 इंटू G4, और दूसरा क्या हो जाएगा G1 G3 G4। क्लियर है? ठीक है, क्या है, K की वैल्यू 2 थी, इसका मतलब एक T1 होगा एक T2 होगा, एक आपका G1 G2 G3 इंटू 1 है और आपका दूसरा G1 G2 G4 एंड 1 है, और दूसरा आपका G1 G3 G4 एंड 1 है। तो दो आपके फॉरवर्ड पाथ हो गए, तो टीके आपको क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेल्टा। डेल्टा इज नथिंग बट सिस्टम डिटर्मिनेंट। Which is equivalent to 1 minus summation of all individual feedback loops gain. It also including self loop. One minus summation of all the individual feedback loop gains, which also include the self loop, plus summation gain into gain product of all possible combinations of two non-touching loops। आपको एक नॉन टचिंग लूप्स का सारे गेन का लिख लेना है, दूसरे गेन लिख लेना है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, नॉन टचिंग लूप्स। अब देखिएगा क्या होगा, इसके बाद आपको अगेन लेना है समेशन गेन into gain product of थ्री नॉन टचिंग। जैसे आपने 2 लिया, अब आपको ऐसे फाइंड आउट करना है कि 3 नॉन टचिंग लूप्स कौन कौन से हैं। डॉट 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 इसके आगे 4 नॉन टचिंग लूप्स कौन कौन से हैं। बस एक चीज याद रखना है कि यहां में एक बार माइनस है तो एक बार प्लस, फिर माइनस और फिर नीचे वाले का प्लस, ये करते जाना है। अभी आपको क्लैरिटी आ जाएगी व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दैट वन। नाउ व्हाट इज डेल्टा के? सो डेल्टा के में से इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ डेल्टा बाय एलिमिनेटिंग all loop gains and associated products
which are touching to the kth forward path. आपके पास T1 T2 दो पाथ थे, तो करस्पॉन्डिंग मेरे पास कितना होगा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 होगा और एक डेल्टा होगा। इस डेल्टा 1 में इस डेल्टा की वो वैल्यूज को निकाल देना है जो T1 पाथ को टच कर रहा था। डेल्टा 1 is equivalent to delta after removing the T1 touching loops information. Similarly T2 में भी वही करेंगे, डेल्टा 2 में। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, then you are going to understand it completely. मैंने मान लिया कि आपने सिंप्लीफाई करके ये बना लिया होता मेसॉन गेन फॉर्मूला, अरे सॉरी सिग्नल फ्लो ग्राफ। S1 S2 T1 T2 कर लीजिएगा and then you are going to replace the transfer function with gain. तो यहाँ पे एक फीडबैक पाथ था H1, यहाँ पे एक फीडबैक पाथ था H2, यहाँ पे आपके पास था G3, ये आपका G4, ये आपका G5, ये आपका G6, this one is G2. सबसे पहले आपको फॉरवर्ड पाथ निकालना है, कितने फॉरवर्ड पाथ है, मींस G1 से G6 पहुंचने के लिए कितने फॉरवर्ड पाथ है। सो T1 क्या कर सकते हैं आप, G1 ले सकते हैं, G3 ले सकते हैं, G4 ले सकते हैं, G5 ले सकते हैं और G6। T2 पाथ कितना होगा, G1 ले लीजिए, G2 ले लीजिए, G6 ले लीजिए। और देखिए कोई फॉरवर्ड पाथ है क्या इसमें, और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है। नाउ आप इंडिविजुअली लूप देख लीजिए कि लूप कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो लूप नंबर 1 कौन सा होगा, G4 इंटू माइनस टाइम्स ऑफ H1। नाउ लूप नंबर 2 कौन सा होगा, ये वाला लूप ले रहा हूं मैं अब। So this one is G3, G4, G5, H2 minus sign. Now there is another loop also. एक ये भी तो लूप है। So L3 loop is equal to minus G2 into H2. और कोई लूप बच रहा है क्या, अच्छा अब अगर मैं नॉन टचिंग लूप्स की बात करता हूं तो मेरे पास लूप कौन कौन से बने थे, एक लूप ये था G4 माइनस टाइम्स ऑफ H1 और एक लूप ये था जो कि नॉन टचिंग होगा। क्योंकि अगर मैं ये वाला लूप लेता तो ये टच करने लगता इसको यहां पे और इस वाले पॉइंट को यहां पे, तो मैंने वो वाला लूप निकाल दिया। सो L1 एंड L3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप्स। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। तो पहले टोटल नंबर ऑफ लूप्स लेने, फिर उसके बाद नॉन टचिंग को आइडेंटिफाई करना है। पहले टोटल नंबर ऑफ लूप्स देखने हैं, उसके बाद नॉन टचिंग लूप देखोगे ना। राइट, ठीक है। अब तुम देखो क्या होगा, डेल्टा कैसे लिखूंगा मैं, T1 T2 तो मैंने लिख दिया था, अब डेल्टा लिखना है और डेल्टा के लिखना है। डेल्टा की डिफिनेशन क्या है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप्स। सो L1 प्लस L2 प्लस L3। क्लियर है, ऋषभ? सो एक बार दोबारा बता दो। 1 माइनस जो फॉर्मूला लिखा है उसमें क्या लिखा है, डेल्टा, एक मिनट, ये लिखा है 1 माइनस सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप्स।
इंक्लूडिंग सेल्फ लूप्स। राइट सर। तो हमने क्या किया, वही चीज लिख दिया, L1 plus L2 plus L3। L1 प्लस L2 प्लस L3 लिख दिया, ठीक है। यस सर। इसके बाद यहाँ माइनस है तो नेक्स्ट वाला प्लस आएगा, राइट सर। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, L1 L3। L1 इंटू L3। इसके बाद फिर से माइनस आएगा और देखना है प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप्स। तो ऐसा तो है नहीं, थ्री नॉन टचिंग लूप्स तो बन ही नहीं गए इसमें। यस सर। तो इस जब ये 0 हो गया तो इसके आगे मुझे देखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ फोर नॉन टचिंग लूप डॉट 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 डॉट। राइट सर। सो डेल्टा इज गोइंग टू बिकम 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L1 L3। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। गुड। नाउ T1 T2 निकल गया मेरा और डेल्टा निकल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज T1, सॉरी डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। डेल्टा K फाइंड आउट करना है ना। सो K की वैल्यू 1 मींस डेल्टा 1। तो आप देखेंगे कि वो कौन सा पाथ इस डेल्टा में से ऐसा है जो मेरे फॉरवर्ड पाथ को नहीं टच कर रहा है। मेरे पास फॉरवर्ड पाथ क्या था, T1 था, एंड T1 इज G1 G3 G4 G5 एंड G6। यस। ठीक है ना। ऐसा कौन सा पाथ है जो इसको टच नहीं कर रहा है? तो अगर मैं ये बनाया होता तो यही बनना होता, यही बन गया था ना भाई। यस सर। तो ऐसा तो कोई लूप है नहीं कि जो इसको टच ना कर रहा हो। ये लूप भी इसको टच कर रहा है, तीनों लूप इसको टच करते हैं ना। L1 वाला ये लूप देखो, इसको यहाँ टच करेगा इस फॉरवर्ड पाथ को, यस इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे L1 लूप टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। सिमिलरली इस पोजीशन पे L2 लूप टच कर रहा है यस सर। इस फॉरवर्ड पाथ को, जो ये वाला फॉरवर्ड पाथ है ब्लू लाइन से। और सिमिलरली ये वाला जो फीडबैक लूप है वो भी इसको यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रहा है। यस सर। तो 1 माइनस हमको केवल वो पॉइंट लिखने थे लूप्स के, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप्स जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रहे हैं। लेकिन L1 L2 L3 तीनों इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं। सो 1 माइनस 0 हो गया। अब एक बार 0 आ गया तो नेक्स्ट वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब दो इंडिविजुअल नहीं टच कर रहे हैं तो कैसे उसके L1 L3 का कॉम्बिनेशन भी नहीं टच करेगा। सो डेल्टा 1 इज नथिंग बट 1। नाउ व्हाट अबाउट डेल्टा 2? अब जो मेरा पाथ था वो क्या था, फॉरवर्ड पाथ ये था, देखिएगा ये था फॉरवर्ड पाथ मेरा, यस सर। which is equivalent to G1, sorry, forward path G is equal to G1, G2 and G6। अगर तुम ये देखोगे तो ये वाला लूप यहां पे तो टच हो ही रहा है और ये वाला लूप भी इसको टच कर रहा है, बट ये जो वाला लूप जो है वो इस वाले फॉरवर्ड पाथ को कभी भी टच नहीं कर रहा है। यस सर। तो 1 माइनस G4 minus H1, right? 1 माइनस नो ठीक है, जो उसकी वैल्यू है। एंड दैट लूप को मैंने क्या लिख रखा है, L2 लूप लिख रखा है शायद, यस सर। है ना, या L2 L1 जो भी लिख रखा होगा। क्या लिखा है मैंने? L1 लिखा होगा, हमने जो मान रखा है उसमें L1 मान रखा है, इस छोटे वाले लूप को। ठीक है। यस। नाउ अगर हम मेजॉन गेन फॉर्मूला लगाते हैं, एक मिनट, तो मेरे पास क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू Tk डेल्टा k अपॉन डेल्टा, विच इज नथिंग बट T1 डेल्टा 1 T2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अब T1 तुम्हारा क्या था, G1 G3 G4 G5 G6 एंड डेल्टा 1 इज 1। नाउ T2 क्या था, G1 G2 G6 1 माइनस L1 which is equivalent to minus times of G4 into H1 yes sir। अपॉन डेल्टा। डेल्टा को मैं ले सकता हूं कि नहीं? yes sir। L1 L2 L3 plus L1 L3। अब L1 L2 L3 की वैल्यू तुम रख लोगे। right। So this is nothing but
Amazon gain formula to find out the transfer function of the system. So in the next lecture, we are going to practice more problem on this one. Clear है? हाँ जी सर. Okay, welcome. चलिए. Now I'm going to end this lecture. Thank you sir. Thank you all.